من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو سورت کی تفسیر ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے سورت طارق، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ سورت طارق کا انٹروڈکشن سمجھ لیتے ہیں۔ سورت طارق جو ہے وہ 96 چیپٹر آف قرآن ہے۔ اس میں جو ٹوٹل آیت ہیں وہ 17 ہیں۔ یہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا جو نام ہے طارق، وہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر ورڈ طارق استعمال ہوا ہے، تو اس سے اس کا نام جو ہے وہ طارق رکھا گیا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں کہ یہ کب یہ نازل ہوئی تھی، تو ہمارے پاس یہ تب نازل ہوئی تھی جب ڈس بلیورز آف مکہ جو تھے وہ ہر طریقے کی کوشش کر رہے تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا میسج ڈیلیور کرنے سے، قرآن کا جو وہ ہے میسج، اس کو آگے پہنچانے سے روک دیا جائے۔ تو وہ ڈفرینٹ پلانز اور مختلف قسم کی چالیں چلتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے تب یہ سورج جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع دیکھیں، موضوع کیا ہے، تو اس میں آپ کو دو موضوع نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد انسان کو خدا کے آگے حاضر ہونا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن ایک فائنل ورڈکٹ ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ ایک فیصلہ کن کر دینے والی کتاب ہے، اور مشرکین یا ڈسبلیورز کی جتنی بھی چالیں وہ چلیں وہ قرآن کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دو موضوع اس کے آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر۔ آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، آسمان اور رات کے وقت کے آنے والے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک سما اور ایک طارق۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہنے جا رہے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ بات آگے کہیں گے، سما اور طارق اس بات کے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سما اور طارق ہے کیا؟ اب اس بات کو سمجھیں۔ سما کا مطلب ہوتا ہے جو بھی کچھ ہمارے اوپر ہے اس کو جو ہے وہ سما کہتے ہیں، اور سماوات جو 7 لیئرز آف اسکائی ہوتا ہے اس کو سماوات کہتے ہیں۔ تو سما جو ہے وہ ایک لمٹ لیس ٹرم ہے، اور سماوات جو ہے وہ لمیٹڈ ٹرم ہے۔ ٹھیک ہے، اب طارق سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو جو ورڈ طارق ہے نا وہ تراکا سے نکلا ہے۔ تراکا کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز کو کوٹنا یا ہیمرنگ کرنا، اس کو بولتے ہیں تراکا۔ جو ورڈ طریق ہے نا یہ بھی اس ورڈ تراکا سے نکلا ہے۔ طریق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک راستہ، یعنی پتلا راستہ۔ پرانے زمانے میں لوگ جو تھے نا وہ اپنے پیروں سے کوٹ کر جو ہے یعنی چل چل کر راستہ بنا لیا کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ طریق اس کو کہتے ہیں طریق، یعنی یہ بھی ورڈ تراکا سے ہی ڈیرائیوڈ ہوا ہے یا اس کا اوریجن وہیں سے ہوا ہے۔
अब जो वर्ड तारिक है ये भी वर्ड तारका से निकला है। तारिक का वर्ड जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है, तारिक का मतलब होता है वो चीज जो रात में आती है ना, उसको बोलते हैं हम तारिक। और ये वर्ड तारका से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने आसमान और जो है वो तारिक की उनको गवाह बनाया उस बात पे जो अल्लाह ताला कहने जा रहे हैं। आयत नंबर 1 के बाद आयत नंबर 2 पे आते हैं। वमा अदरा का मत तारिक, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक सवाल किया है। जब भी किसी आयत में अल्लाह ताला सवाल करते हैं ना, उसका मकसद ये होता है कि इंसान की अटेंशन को, उसकी तवज्जो को उस चीज की तरफ मबजूल करवाया जाए जो कि अल्लाह ताला जिसका जवाब इंसान के पास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है वो किसी आयत में क्वेश्चन करते हैं। आयत नंबर 3 पर आ जाते हैं। अन नजम साकिब, वो तारा है चमकने वाला। नजम का मतलब होता है, जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है सितारा। और सकबा का मतलब होता है कि किसी चीज में सुराख कर देना। जो लफ्ज सकबा है ना, ये हम लोग रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो रोशनी होती है ना वो तारीकी में या ब्लैकनेस में होल करके जो है वो हम तक रोशनी पहुंचाती है। अब रात के वक्त आने वाला, पिछली आयत में रात के वक्त आने वाले से क्या मुराद है, अब रात के वक्त जो चीज आती है वो क्या है। इस आयत में हमें उसका जवाब मिल गया कि वो एक चमकता हुआ सितारा है। वो क्या करता है, वो चमकता हुआ सितारा वो डार्कनेस में या जो आसमान की गहरी काली चादर होती है उसमें से, उसमें सुराख करके और अपनी रोशनी को हम तक पहुंचाता है। यानी कि आप समझे कि एक लाइट की जो जर्नी है ट्रैवलिंग की, वो यहाँ पे इस आयत में समझ आ रही है। अच्छा, अब कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो सितारा है वो कोई एक स्पेसिफिक सितारा है, उस स्पेसिफिक सितारे की बात हो रही है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जनरली सारे सितारों की जो है वो बात हो रही है। ठीक है, तो ये आयत नंबर 3 में समझ आ गई। यानी आयत नंबर 2 का जवाब अब आयत नंबर 3 में हमें मिल गया। अब आ जाते हैं। इन कुल्लू नफ्स लम्मा अलैया हाफिज, कि कोई मुतनफ्फिस नहीं या कोई नफ्स नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं। अच्छा, हाफिज जो इस आयत में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है कि हिफाजत करने वाला, और दूसरा ये कि लुक ओवर या निगहबानी करने वाला। तो अब इससे मुराद अल्लाह ताला भी हो सकते हैं या अल्लाह ताला के फरिश्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ही हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं और प्लस हमारी वो भी कर रहे होते हैं, लाइक हम पे लुक ओवर भी कर रहे होते हैं जो भी हम अमाल करते हैं। अच्छा, इनका मतलब है नहीं, और कुल्लू का मतलब है जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कुल्लू, उसका मतलब है एवरीवन यानी सब। यानी इस आयत में हमें ये बात समझ आई है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान पर अपने एंजल्स को अपॉइंट किया हुआ है जो कि उसके अमाल भी लिख रहे हैं और जो उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकता है, बल्कि जो भी वो कुछ कर रहा है उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उसका जो रिकॉर्ड है, सब कुछ डेटा है, वो महफूज किया जा रहा है और वो उसके लिए जवाबदेह होगा कयामत वाले दिन। तो अगर ये एक बहुत ऐसी आयत है कि अगर हम सब इसको अपने जहन में रख लेना तो हमारा बिहेवियर, हमारे खुद ब खुद उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। आयत नंबर 4 के बाद आयत नंबर 5 पे आ जाते हैं। फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, तो इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसान के अटेंशन को यूनिवर्स से हटाकर उसकी अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। पहले स्टार की और उस सब चीज की बात हुई थी, अब इंसान की अपनी बात हो रही है। यानी अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इंसान अब अपने ऊपर फोकस करे कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। यहाँ पे जो यंजुर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, यंजुर प्रेजेंट होता है और यंजुर का ही पास्ट टेंस जो होता है वो नजरा होता है, ठीक है। यंजुर का मतलब होता है आप किसी चीज को देखें और गौर से देखें, केयरफुली देखें, उसको बोलते हैं यंजुर, ठीक है। अब फल यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक में एक मेल फ्लूइड की जर्नी की बात हो रही है। वो अभी आपको आगे समझ आ जाएगा कि मेल फ्लूइड की जर्नी की बात क्यों हो रही है, या मेल फ्लूइड हमें कैसे पता चला कि उसकी जर्नी की बात हो रही है। तो ये भी वो आगे वाली आयत पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल फ्लूइड की ट्रैवलिंग की जर्नी की बात हो रही है, यानी किस तरीके से वो ट्रैवल करके फीमेल को इम्प्रेग्नेट कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन बीइंग की जो बिगनिंग हुई है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग की जो बिगनिंग है वो इतनी डर्टी और पैथेटिक बिगनिंग है कि बहुत डर्टी फ्लूइड से इंसान की जो है वो बिगनिंग हुई है। और इंसान क्या करता है,
ये इस दुनिया में आकर जो है वो भूल जाता है कि उसकी बिगनिंग हुई कैसे थी, वो पैदा हुआ कैसे था। यानी कि जो आप अच्छा इस आयत में देखें कि इंसान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इंसान का जो रूट वर्ड है ना, यानी जिस लफ्ज से इंसान निकला है वो नसिया से है, और नसिया का मतलब होता है फॉरगेटफुल, यानी भूल जाने वाला। तो जब इंसान इस दुनिया में आता है, उसको वेल्थ, स्टेटस, पैसा और बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिलती हैं, तो क्या करता है वो अपनी बिगनिंग को, वो जहाँ जिस चीज से पैदा हुआ था, जहां से उसकी बिगनिंग हुई थी, उसको भुला देता है। और ये इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया है। पैसिव फॉर्म यानी कि अल्लाह ताला ने लिखा है कि ही इज क्रिएटेड, यानी जो यहाँ पे वर्ड खुलिक इस्तेमाल हुआ है ना इस आयत में, तो ये पैसिव फॉर्म है, यानी अल्लाह ताला ने लिखा है ही इज क्रिएटेड। अल्लाह ताला ने ये मेंशन नहीं किया कि किसने पैदा किया, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे नहीं बताया, नो मेंशन ऑफ द क्रिएटर। सिर्फ ये बताया गया है कि ही इज क्रिएटेड। तो अल्लाह ताला ने जब भी अल्लाह ताला किसी आयत में अपना नाम मेंशन नहीं करते ना और पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अल्लाह ताला की एक नाराजगी को शो कर रहा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे नाराजगी को शो क्यों कर रहे हैं? एक तो इसलिए कि इंसान की बिगनिंग जो है वो बहुत ही कोई लो चीज तो ये कि अल्लाह ताला ने उसके साथ अपना नाम मेंशन नहीं किया। सेकेंडली, कि इंसान इतना फॉरगेटफुल है कि वो अपनी बिगनिंग को भूल जाता है इस दुनिया में आने के बाद, तो इस वजह से भी अल्लाह ताला अपनी नाराजगी शो कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपना नाम मेंशन नहीं किया। तो ये थी कि फलयंजुर इंसान मिम्मा खुलिक, कि इंसान गौर करे कि वो किस चीज से पैदा हुआ। यानी वो इतनी डर्टी चीज है कि अगर वो इंसान के कपड़े में भी लग जाए तो इंसान हर चाहेगा कि वो उससे जल्दी से जल्दी उसको क्लीन कर ले। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आयत नंबर 6। खुलिका मिन माइन दाफिक, वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। माँ का मतलब होता है वाटर, और दाफिक का मतलब होता है कि एक बहुत ही तेजी से गशिंग मैनर में निकलना। यानी यहाँ पे वही मेल फ्लूइड की जर्नी की बात हो रही है कि वो एक गशिंग मैनर में निकलता है, यानी बहुत तेजी से स्पीड में निकलता है। एंड यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मेल फ्लूइड की ट्रैवलिंग की जर्नी की बात हो रही है, जबकि प्रीवियस आयत में हमने किस चीज की ट्रैवलिंग की जर्नी की बात की थी? लाइट की, कि लाइट किस तरीके से जो है वो ट्रैवल कर रही है और किस तरीके से हम तक पहुंची है। तो यहाँ पे एक, अब पहले हमने एक डिफरेंट जर्नी पढ़ी थी, अब एक डिफरेंट जर्नी पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, आयत नंबर 7 है, यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब। सुल्ब कहते हैं बैकबोन को, यानी आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको, और तराइब कहते हैं रिब्स को। अच्छा, यानी पसलियां जो होती हैं आपकी। अच्छा, अब इस आयत, ये जो आयत है ना, ये एम्ब्रायोलॉजी की स्टडीज, यानी किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वो किस तरीके से बनता है, ये आयत ना एम्ब्रायोलॉजी की स्टडीज के बाद हमें और ज्यादा वाज़ेह और क्लियर हो गई थी। अच्छा, इस आयत को समझने से पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि यहाँ पे हम लोग मेल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फीमेल की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो गशिंग मैनर में जो ड्रॉपलेट इमिट आउट होता है, इट बिलोंग्स टू मेल, नॉट टू अ फीमेल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कि जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है, तो जब एम्ब्रियोलॉजी की स्टडीज हमारे पास हुई तो उससे पता चला कि टेस्टिकल्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो आपके पास किडनी के करीब होती है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और रिब्स आपका एंगल बना रहे होते हैं ना, वहां पे टेस्टिकल्स की डेवलपमेंट होती है। टेस्टिकल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि आपके पास फ्लूइड प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो और बाद में टेस्टिकल्स क्या होते हैं, वो पैदाइश से पहले जो लोअर एक्सट्रीमिटीज या स्क्रॉटम की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो एब्डोमेन का टेम्परेचर बर्दाश्त, पेट का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है। तो लेकिन इनका जो ब्लड सप्लाई या जो भी कनेक्शन होता है वो वहीं से होता है जहां पे टेस्टिकल्स की डेवलपमेंट हुई थी, यानी स्पाइन और रिब्स के दरमियान से। तो इस वजह से साइड में लिखा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच से निकलता है, यानी कि टेस्टिकल्स जो कि फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली उनकी डेवलपमेंट पीठ और सीने के दरमियान से ही होती है। बाद में वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन वहीं से ही होता है, यानी पीठ और सीने के दरमियान से। सो आई होप ये आयत जो है वो क्वाइट क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद आयत नंबर 8 जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आयत नंबर 8 से आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जजाकल्लाह खैर। You can subscribe this channel for more informative and precise tafsir of Quran.